हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 10। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में फर्स्ट सीक्वेंस एंड सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यह टॉपिक स्टडी करेंगे। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। तो गाइस, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस। वी राइट नंबर 1 2 3 4 अप टू dash 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 in an order. In this order we can take the position of any number. So for example, if 13 is 13th position. If 17 is 17th position. The number 1 2 4 9 16 25 or dash 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 are also written in a particular order. Hence, if 16 equals to 4 square is a fourth position, or if 25 is a 5 square is a fifth position, or 49 is a 7 square is a seventh position, right? In this set of numbers, also place of each number is determined, right? That means, तो हम इसे सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं. That means a set of number where the number are arranged in a definite order, like natural number 1 2 3 number is called a sequence. यानी कि एक एनी नंबर की जो पोजीशन होती है, फाइनाइट पोजीशन, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, राइट? इन अ सीक्वेंस a particular number is written at a particular position. If number is written as a1 a2 up to dash dash dash, then a1 is first position, a2 is second position. Suppose last term is an, then an is nth place or nth position, यानी कि an की place क्या होगी? nth, right? यानी कि a sequence of a number is also represented by alphabets. कौन से? हम इस सीक्वेंस को F1, F2, F3 इससे भी डिनोट कर सकते हैं. And we find that there is a finite order in which number are arranged, right? So अभी हम सीक्वेंस को किस तरह से डिनोट करते हैं यह स्टडी करते हैं. So terms in a sequence. In a sequence, order term are represented as T1, T2, T3 up to dash 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 Tn or up to infinite, right? So the position of sequence is written as curly bracket Tn, right? So if the sequence is infinite, for every position there is a term Tn. So अभी आपके बुक में एक एक्टिविटी गिवन है. अभी एक्टिविटी, suppose some sequence are given here, so show the position of that number or that sequence. So suppose first is 9 15 21 71, some numbers are given here. So in that sequence, T1 equals to 9, T2 equals to 15, T3 equals to 21, and that's. Suppose second is 7 7 7 7. यहाँ पर चारों नंबर सेम है, बट उनकी पोजीशन अलग है. यानी कि T1 equals to also 7, T2 is also 7, T3 also 7, और T4 is also
7. Suppose given sequence is negative, that means -2, -4, -6, -8, right? So the position is T1 equals to -2, T2 equals to -4, T3 equals to -6 and T4 equals to -8. यानी कि अगर वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो सेम नंबर हो, उस नंबर का जो प्लेस होती है वह उसकी पोजीशन डिनोट करती है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हियर सम सीक्वेंस आर गिवन। फर्स्ट इज 100, 70, 40, 10. Second is -7, -4, -1, 2 and third is 4, 4, 4. यानी कि 3 सीक्वेंस हमें यहाँ पर गिवन है। In this sequence, observe how the next term is obtained. So we write first sequence. First sequence is 100, 70, 40, 10, right? अभी हमें how to obtain next term, right? So we observe that 100 plus minus, यहाँ पर ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं, -30. 100 minus 30 is get 70, right? But 70 minus 30 is 14, right? So we get 70 minus 30 is 40 and 40 minus 30 is 10. So obviously 10 minus 30 we get -20, right? So next term is -20 and -20 minus 30 is -50 in that way. इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारा सेकंड सीक्वेंस है -7, -4, -1, 2. हम यहाँ पर भी 30 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज दिस सीक्वेंस इज डिफरेंट, राइट? तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अभी -7 है तो हमें -4 लाना है, यहाँ पर हम +3 कर सकते हैं। कैसे? -7 + 3 गेट -4, राइट? -4 + 3 is -1 and -1 + 3 is 2, right? So 2 + 3 is 5 and 5 + 3 is 8. तो इस तरह से हम इस सीक्वेंस का भी आगे की टर्म फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है थर्ड इज 4, 4, 4, यानी कि हमारे सेम नंबर से थर्ड हम इधर लेते हैं, तो हमारी थर्ड है 4, 4, 4, सेम नंबर से, यानी कि नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, नो मल्टीप्लिकेशन, नो डिवीजन, यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ 0 ऐड करना होगा, तभी हमें सेम नंबर्स मिलेंगे। सो ऐसे करते हैं हम 4 + 0 we get 4, 4 + 0 we get 4, 4 + 0 we get 4। तो इस तरह से हमें इस सीक्वेंस में सब नंबर 4 ही मिलेंगे, राइट? मतलब हमें फर्स्ट हमारा जो गिवन सीक्वेंस होगा वह हमें ऑब्जर्व करना है और फिर उसमें हमें प्लस, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन, एनी ऑपरेशन, कौन सा भी ऑपरेशन करके नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करनी है। इन ईच सीक्वेंस, इन अबाउट दिस, इन हियर, इन ईच सीक्वेंस एवरी टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग, राइट? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम। सो a particular number in the previous term, a particular number in previous term, यानी कि अगर हमें ये निकालना है तो इसका प्रीवियस टर्म में पर्टिकुलर नंबर आर एडेड और सब्ट्रैक्ट और डिवीजन, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर हमने ऐड किया है, राइट? द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms in
constant, right? The difference in first sequence, the difference is first sequence is negative, right? -30 यानी कि plus -30 यानी कि -30, right? In second is position and in it is position, और थर्ड इज इट इज 0, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला 0. 3 सीक्वेंस हमारे 3 टाइप्स के. सो if the difference between two consecutive terms in constant, then it is called common difference, or common difference is denoted by capital A, small d. स्मॉल d क्या डिनोट करना है हमारा? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, राइट? So in the given sequence, if the difference between two consecutive terms, then we write tn plus 1 minus tn is a constant. Then the sequence is called arithmetic progression, right? यानी कि tn plus 1 minus tn. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. इन द गिवन सीक्वेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स tn plus 1 minus tn is constant, then the sequence is called as arithmetic progression. In the sequence tn plus 1 minus tn equals to d, the common difference, right? So in an arithmetic progression, in first term is denoted by a and common difference is d. So जो फर्स्ट टर्म अभी हमने देखा, हम किससे डिनोट करते हैं? t1 इक्वल्स टू हमारा क्या होगा? a एंड कॉमन डिफरेंस इज t2 होगा हमारा a प्लस d, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सो t3 इक्वल्स टू a प्लस d, क्योंकि हमारा a प्लस d फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 प्लस 2d. So t3 equals to a plus d plus d. So we get a plus 2d, right? So arithmetic progressing having first term as a and the common difference is d, right? First term is a and common difference is d. So a1 in bracket a plus d, a plus 2d, a plus 3d is a sequence. तो हमें यहाँ से गिवन सीक्वेंस क्या मिलेगा? हमारा फर्स्ट क्या है? t1. हम सीक्वेंस किससे लिखते हैं? t1, t2, t3 अप टू डैश. तो हमारा ये कैसे आएगा? a plus d, a plus 2d, a plus 3d अप टू nth और इन्फिनिटी, राइट? अभी हम इस कॉमन डिफरेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने अभी थ्योरेटिकल स्टडी किया है, उस पर हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते, तभी हमें ये समझ में आएगा, राइट? तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इफ इट इज एन एपी, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म. यानी कि फर्स्ट हमें चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. अगर होगा तो हमें नेक्स्ट 2 स्टेप फाइंड करनी है, अगर नहीं होगा तो नहीं करनी है. सो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस, वी चेक फर्स्ट सीक्वेंस. सो फर्स्ट राइट गिवन सीक्वेंस इज 5, 12, 19, 26 up to dash. So assume that t1 equals to 5, t2 equals to 12, t3 equals to 19 and t4 equals to 26. So first we find difference. So t2 minus t1 equals to 12 minus 5 is 7, right? Second t3 minus t2 equals to t2. ये आएगा हमारा t3 क्या है? हमारा 19.
minus 12 is also 7. Right? T4 minus T3 equals to 26 minus 19 is also 7. So common difference is 7. That means, which implies that D equals to 7 is same. So the given sequence is arithmetic progression. Right? Because given sequence are same. कॉमन जो हमारा कॉमन डिफरेंट है वो सेम है. सो दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो फाइंड नेक्स्ट टू टर्म. सो हमारा लास्ट नंबर है 26. राइट? सो फाइंड नेक्स्ट टू स्टेप. फर्स्ट स्टेप 26 प्लस 7. राइट? इसी तरह से हम लेंगे ना. सो 33. और नेक्स्ट इज 33 प्लस 7 40. राइट? तो नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस इज 33 एंड 40. सो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है, यहाँ लेते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा सेकंड 2 minus 2 minus 6 minus 10 up to dash dash. So T1 equals to 2, T2 equals to minus 2, T3 equals to minus 6, T4 equals to minus 10. Therefore, which implies that T2 minus T1 equals to 2 minus 2 minus 2 equals to minus 4. Second is T3 minus T2 equals to minus 6 minus 2. Right? minus 6 minus 2. ये प्लस है. हाँ, -2 -2 ये आएगा -6 माइनस ये प्लस हो जाएगा. तो ये भी आएगा हमारा -4 बिकॉज ये -2 है और माइनस +2 हो जाएगा. थर्ड वन इज T4 माइनस T3. तो ये आएगा -10 माइनस +6 इक्वल्स टू -4 विच इम्प्लाइज D इक्वल्स टू -4. ये द सेम. कॉमन डिफरेंस इज सेम. देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज AP, arithmetic progression. So we find next two steps. So first is -10 minus 4 equals to -14, and second one is -14 minus 4 is -18. -14 and -18 is next two term of that sequence. अभी हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 1 2 2 2 3 3. राइट? यही एग्जाम्पल है ना हमारा. राइट. तो यहाँ पर T1 इक्वल्स टू 1, T2 इक्वल्स टू 2, T3 इक्वल्स टू 2, T4 इक्वल्स टू 2, T5 इक्वल्स टू 3 एंड T6 इक्वल्स टू और T6 equals to 3. So T2 minus T1 यानी कि 2 minus 1 is 1. T3 minus T2 2 minus 2 is 0. अभी T4 minus T3 2 minus 2 0 और T5 minus T4 is 5 is 3 minus T4 2 is 1 और T6 minus T5 right equals to 3 minus 3 is 0. So in that sequence the common difference is 2, 1 and 0. It's not common. This difference is 2, 0 and 1. So that sequence is not arithmetic progression, not a AP. राइट? सो ये अगर ये सीक्वेंस
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम उसके नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड नहीं करेंगे। अभी हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ क्या है हमारा 3/2 1/2 -1/2 up to dash dash. So here t1 equals to 3/2, t2 equals to +1/2 and t3 equals to -1/2. So we implies that, और यहाँ पर लेते हैं हम, so implies that t2 minus t1 equals to 1/2 minus 3/2 equals to -2/2 equals to -1, right? और t3 minus t2 equals to -1/2 minus 1/2, right? Minus get plus, -2/2 equals to 1 minus 1. So the common difference d is -1, यानी कि यहाँ पर सेम है. सो वी फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म. सो नेक्स्ट 2 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर करते हैं हम. लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट टर्म क्या है, -1/2 -1 इज इक्वल्स टू, हम अभी -1/2 में -1 सबट्रैक्ट करेंगे बिकॉज हमारा d -1 आया है, राइट? तो ये हमारा आएगा -3/2 और -3/2 -1 इज इक्वल्स टू -5/2, राइट? ये आई हमारे नेक्स्ट 2 टर्म इन दैट सीक्वेंस, इक्वेशन 4 की. तो इस तरह से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया. थैंक यू गाइस.